Assalamu alaikum, dear students. So in the previous lecture we discussed nucleophilic substitution reaction and we discussed SN1 mechanism. In this lecture we will discuss the second part of these reaction, which is SN2 mechanism. We have discussed a lot about SN1 reaction, that which type of substrate follow SN1 mechanism, which type of solvent we will use in SN1 mechanism. So in this lecture we will discuss the nucleophilic substitution reaction SN2 mechanism. We will entirely focus on SN2 mechanism, that how this reaction occur and which type of substrate follow this mechanism. So in बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके पास बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे. In these reaction, in the rate determining step we have two molecules. One will be the substrate molecule and the other will be the incoming nucleophile in SN2 mechanism. So that is why it is called SN2 mechanism. SN2 means, the 2 means bimolecular. In the rate determining step we will have two molecules. Complete in a single step. SN2 mechanism is a single step mechanism. This reaction completes in a single step. As contrast to the SN1, over there we have two steps. In the first step, ionization of substrate occur, and the second step the attacking nucleophile add to the carbocation. In this reaction we have only one step, and generally these reactions, the substrate which follow SN2 mechanism are generally followed by primary alkyl halide. Primary alkyl halide follow SN2 mechanism. If you have primary alkyl halide, so it is very possible that it will follow SN2 mechanism. It will follow what mechanism? Which type of mechanism? It will follow SN2 mechanism, because in primary substrate we have no crowdedness as compared to the tertiary alkyl halides. So this is a general example of this one. We have this primary substrate. This carbon is a primary carbon, and the chloride is attached to this primary carbon. So this alkyl halide is a primary alkyl halide, and we will add this nucleophile over to this molecule, but the mechanism will be SN2 mechanism. And one thing more important part of the SN2 mechanism, that you should use non-polar solvent as contrast to that one in SN1, which we were using polar solvent. In this case we will use non-polar solvent. Why we are using non-polar solvent? Because over here in these reaction no intermediate formation occur. We have only a transition state. So this nucleophile will attack to this carbon, which is attached to our nucleophile over here chlorine. Always keep it in mind that this nucleophile will attack from the back side of the substrate. Why? Because in the front side we have already a nucleophile. So it is very possible for this molecule to be attacked by this nucleophile from the back side. अच्छा, फिर अगर आपके पास क्या होगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल का बांड बनता जाता है, अब इस प्राइमरी कार्बन के साथ धीरे धीरे ये बांड बनता जाता है, और धीरे धीरे आपके पास ये वाला बांड ब्रेक होना शुरू हो जाता है. सो स्लोली ये बांड बनता जाएगा, एंड स्लोली दिस बांड विल बी ब्रेकिंग. And the time reached that this bond will be completely formed and this bond will be completely broken. So this will be kicked up from this molecule. ये निकल जाएगा इस molecule से because of this nucleophile. तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर फिर आप देख ले, so ये हमारा स्टार्टिंग वाला सबस्ट्रेट था जिसमें आपके पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल था, और एंड में अगर आप देख ले यहाँ पे क्लोरीन या क्लोराइड आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैच है, और यहाँ पे आप देख ले यहाँ पे आपके पास OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया. सो क्या हो गया, ओवरऑल आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया. कौन से मैकेनिज्म में? SN2 मैकेनिज्म में. कौन से सबस्ट्रेट में?
प्राइमरी सबस्ट्रेट में। किस किस्म के सॉल्वेंट में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और इसमें ये ओवर हियर वी हैव अ लिटिल डिफरेंस एज कंपेयर टू द SN1 दैट द अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्रायर वन। इस न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड पे हमेशा के लिए ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा SN2 मैकेनिज्म में। सो ये तो ओवरऑल था आपके पास क्या SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बना है, सो यहाँ पे आप कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, जो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड क्या है साइमल्टेनियसली एक बनता जाता है एंड दिस वन इज बीइंग ब्रेकिंग। ये ब्रेक होता जाता है और ये आपके पास बनता जाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और इस तरह ये रिएक्शन आपके पास होगा। सो SN2 मैकेनिज्म आपके पास इस तरह होगा। ये आपके पास सबस्ट्रेट कौन सा लेगा? ये आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वाला सबस्ट्रेट लेगा। अच्छा, सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास जब SN1 मैकेनिज्म होता है वहाँ पे सबस्ट्रेट होता है टर्शरी। SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी सबस्ट्रेट होता है, और जब आपके पास प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN1 में पोलर सॉल्वेंट यूज होता है, SN2 में नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। सो व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी सबस्ट्रेट? अगर आपके पास सेकेंडरी सबस्ट्रेट है तो वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? It will depend upon the nature of the substrate, that which substrate you are using. If you are using a polar substrate, so what will happen? Which mechanism will be followed? If you are using non-polar substrate, so what will happen then? So यहाँ पे अगर आप देख लें, if you used polar solvent, so secondary substrate will follow SN1 mechanism. फिर ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करोगे, जिस तरह हमने किया था कहाँ पे SN1 मैकेनिज्म में, वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट था तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था और टर्शरी सबस्ट्रेट था। सो सेकेंडरी विल बिहेव लाइक टर्शरी सबस्ट्रेट इफ वी यूज पोलर सॉल्वेंट। जब आप पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हो सो सेकेंडरी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा लाइक दैट आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जब आपके पास नॉन पोलर सबस्ट्रेट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जब आप यूज़ करते हो और आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो फिर आपके पास SN2 वाला मैकेनिज्म होगा, ये वाला जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कौन सा सब मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2। कब? जब आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो। सो जब भी आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं और आपने उस रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर दिया, सो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 पे जाएगा। सो द मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड entirely depend upon the nature of the solvent used in the reaction. So all these about the nucleophilic substitution reaction, that how these reactions occur and which type of mechanism they follow. सो अगर इसको हम समराइज करें, हम देख लें कि किस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो जब आपके पास SN1 मैकेनिज्म होगा वहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट होगा कौन सा वाला? टर्शरी सबस्ट्रेट होगा, और वहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो आपके पास होगा कि कौन सा? पोलर सॉल्वेंट होगा। 2 स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। पहले वाला स्टेप स्लो होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। जब आपके पास सबस्ट्रेट प्राइमरी टाइप का हो तो वहाँ पे आपके पास जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो मैकेनिज्म आपके पास होगा SN2 का, और ये आपके पास एक स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल अपीयर होंगे, एक आपका सबस्ट्रेट एंड द सेकंड वन विल बी योर न्यूक्लियोफाइल। ये वाला हो गया। अच्छा, फिर अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो डिपेंड करेगा इंटायरली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आपने सॉल्वेंट पोलर यूज़ किया है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, अगर आपने सॉल्वेंट नॉन पोलर यूज़ किया है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू।